yesterday, and then we'll do the remaining part. That is the consumer part, which is really okay. So, welcome back to the operating system lecture series. And that in this particular session, we will be completing our producer and consumer podcast solution. Okay. So we have got, this is the classical concurrency problem. We are going to solve. We are going to solve the problem of concurrency, in which there are multiple processes who are trying to access the data, who are trying to first execute, and then will try to access the same data. So for that reason, we are doing all this arrangement. Okay. So we were just learning about the producer and consumer problem. So in the producer and consumer problem, we come to know that in in producer and consumer problem, this is we have one producer and there's one consumer who is going to consume the data, whatever is being generated by the producer. Okay. Actually, I repeat the things, number of times, because I didn't feel that you people are getting or not. Okay. बट स्टिल जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा आप लोग को समझा होगा, तब जाकर मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है और मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन। सो ये मेरी एक हैबिट है रिपीट करने की। सो आई होप यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हैबिट। ओके। सो जो रिपीट करता हूँ मैं, दैट इज फॉर योर सेक ओनली। ओके। हाँ। ओके, चलो ठीक है। So in producer consumer problem, what we have done, I think the lecture before, I think yesterday or the day before yesterday, we have done that producer consumer problem. So we have got, you have already gone through. I've already shared the PDF file of that producer and consumer problem. That what is the problem and what will be the solution. What is the proposed solution for it? Okay. In the last lecture, we have started with the implementation part of the producer and consumer problem. That how you're going to solve the problem of producer and consumer. Okay. So for that reason, we have considered these steps. Okay. We have considered these variable. So we have to take the fixed size of buffer. Sorry. We have to consider a fixed size of buffer. For that, we can take the array of fixed size of size n. Okay. Then we have got two variables in and out. Okay, these are the variable which gives the index position जहां पर आपको data insert करना, और out is the variable जहां से consumer को data remove करना है. Okay, so in is the variable where producer is going to insert the data. Okay, will generate the data first and then insert the data at index position in variable. Okay, and out is the variable which gives the index position from where the consumer is going to consume the data, remove the data. Okay, so these two variables are clear, because repetition is important because we have to do the um, consumer part. Okay, we have to perform the implementation. We have to see the implementation part of the consumer side. Okay, the producer side we have already seen. So these are in and out. Then count the total number of data items which will be there in the buffer. So that will be given by the count variable. Okay. Then next item P and next item C. So who is going to, what will be the कौन सा item रहेगा, कौन सा data रहेगा, which you are going to store in the data next. Okay, which has been produced by the producer. तो नेक्स्ट डेटा आइटम को पॉइंट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास में ये वेरिएबल. ओके. देन नेक्स्ट आइटम सी, कंज्यूम करने वाला जो नेक्स्ट डेटा आइटम कंज्यूम करना है, सो दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. ओके. So these are the two variable for that particular requirement. Okay. Then these are the initialization. In this way we have to, declare the array. Okay, of name buffer of type integer. Okay, which is of fixed size. We have defined the fixed size with the n. Okay. Then in out count we are initializing it with the 0. Okay. And then after that we have started with the producer part. In producer part we have seen that after inserting all the data at all the index position from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, after that we came to know that 10 is equal to 10. So this condition becomes true, and on condition true होने के बाद में we have done nothing. Okay. So आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, स्लीप मोड पे जाना है. तो स्लीप में जाने के लिए आप सिंपली वहां पे कुछ कोड डाल सकते हैं. ठीक है. So that is the skeleton part of this producer, the producer side. That the problem was that after inserting all the data, if the buffer is full,
then your producer should not insert the data. Okay, अगर डेटा प्रोड्यूस होता है तो वो या तो डिस्कार्ड करना चाहिए सिंपली, और अगर प्रोड्यूस नहीं करता है तो सिंपली इसको स्लीप पे जाना चाहिए. ओके, और कंज्यूमर साइड का क्या इश्यू है? एट द कंज्यूमर साइड वी हैव टू मेक श्योर दैट your consumer won't try to consume the data if the buffer is empty. ओके, ये स्टेटमेंट आपको एकदम याद में होना चाहिए. ठीक है, मैं इसको रिपीट इसके लिए वापस से कर रहा हूँ ताकि आपको ये स्टेटमेंट याद रहे. ओके, your consumer won't try to consume the data from the buffer if the buffer is empty. Okay, your consumer won't try to consume the data from buffer if the buffer is empty. Okay, so ये statement हमारे लिए applicable है. अच्छा, how we will come to know, how we will come to know that your buffer is empty right now. So for that also we have a part of code. Okay, जो कि हमको यहाँ पर अभी implement करना है. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, उसको हम लोग यहाँ लिख के इन द सेम वे वी विल ट्राई टू उसके नंबर ऑफ इटरेशन हम लोग एक बार रिपीट करें. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी, आई डोंट थिंक ये कोड में आपको प्रॉब्लम आया होगा. सिंपल सा कोड है, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट the producer won't try to add data items in the buffer if the buffer is full. तो यहाँ पर हम लोग ने वही अरेंजमेंट किया है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कंज्यूमर पार्ट. ओके, तो कंज्यूमर के अंदर भी आप लोग को वही चीज करना पड़ेगी. कंज्यूमर के अंदर पहले एक काम करता हूँ, मैं वो इमेज निकाल लेता हूँ जो इमेज मेरे वीडियो की. ठीक है, किसी और का इमेज नहीं बल्कि वो मेरा खुद का इमेज है. मेरा say because whatever I am presenting, it is not showing on the screen. Hello everyone, am I audible now? Am I audible? Okay. पहले आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? आ रही थी ना? ओके. पता नहीं यहाँ पर मेरी स्क्रीन एकदम फ्रीज हो गई थी एक्चुअली. अब यहाँ पे लिख के आ रहा है मुक्तार अंसारी लेफ्ट. यहाँ तो मैं हूँ ऑलरेडी. चलो ठीक है, अब दिखाया उसने एक्चुअली. थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ. ओके, अब थोड़ा सा और क्लियरली विजिबल. चलो ठीक है. ओके, so this is the screenshot of the video which I have recorded last year. So this is the consumer part. I'm going to write this particular code on our sheet so that you can refer it later. Okay, so basically this is the code. Okay, so simply just let me give me only 1 minute, so I'll copy the code. Okay, so this is the code. While count equals to while count is equal to 0 is a comparison, and after that ये अगेन आपका इनसाइड पार्ट डू नथिंग वाला पार्ट. उसके बाद में नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम सी, मतलब आपके कंज्यूमर साइड वाला, इनटू बफर आउट. वहां पे इन यूज हुआ था, यहाँ पर आउट यूज हो रहा है. उसके बाद में
out is equal to out plus 1 mod n. ओके, देन काउंट इक्वल्स टू, काउंट इज इक्वल टू, वहां पे हम लोगों ने प्लस किए थे और आगे बढ़े थे, यहाँ पे काउंट -1 करेंगे और पीछे आएंगे। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट कोड। और अब हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा एक टेबल भी बनाना था, ट्राई करता हूँ मैं टेबल बनता है क्या। ठीक है, चलो बन गया। ओके, वी हैव टू वेरिएबल, वन इज आउट एंड सेकेंड इज काउंट। तो वन इज आउट, सेकेंड इज काउंट। वहां पर क्या था हमारा, वहां पर इन था और काउंट था। ओके, आउट और काउंट है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, वाइल काउंट इज इक्वल टू 0। तो वाइल काउंट इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला लाइन ऑफ कोड। उसके बाद में हमारा सेकंड लाइन ऑफ कोड, ये वाला मैं एरो मार्क नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ ताकि हम लोग को उसको करने में आसानी हो। नेक्स्ट आइटम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लेकिन चलेगा, इक्वल टू बफर ऑफ आउट। ये हमारा कॉलम हो गया, आउट इक्वल्स टू आउट प्लस 1। इसको पहले लिख के रखा था लेकिन मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली, मॉड एन। और लास्ट का स्टेटमेंट हमारा काउंट इक्वल्स टू काउंट -1, काउंट इक्वल्स टू काउंट -1। ओके, तो ये हमारे पास रेडी हो गया। एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट के वी हैव n की साइज, दैट इज द साइज ऑफ buffer what we have taken in the last example, it was n equals to 10। ओके, हाँ n equals to 10 है, तो इट मीन्स कि हमारे पास में जो साइज है वो है 10। ओके, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इसको हम लोग को रिमूव करने में आसानी हो। इन द प्रीवियस एग्जांपल, थोड़ा देखो मैं आपको ये पहले बता दूं, दिस इज द प्रोड्यूसर पार्ट, आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम शीट। ओके, ताकि आपके पास में रिकॉर्ड रहे। ओके, सो 0 1 2 से लेकर 9 तक है। तो चलो मैं इसके अंदर पहले सेक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले डिवाइड कर लेता हूँ 5 5 का, तो 1 2 3 4 5। ओके, देन 1 2, ये 3 और ये 4 5। ठीक है, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये सब काम आपके स्लाइड के अंदर पॉसिबल नहीं। तो ये जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो दैट इज, इससे ही थोड़ा बहुत समझ में हम लोग आते हैं, बाकी स्लाइड से तो समझ में आने वाला नहीं क्या हो रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ पर हम लोग ने कौन सा डेटा इंसर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने डेटा जो इंसर्ट किया था ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, ये हम लोग ने डेटा यहाँ पर इंसर्ट किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, और लास्ट में जो डेटा हम लोग ने इंसर्ट किया था, लास्ट में वाई वाई जेड जेड किया था। ठीक है, तो चलो बात एक ही है, तो यहाँ पर एच एच वाई वाई के बजाय यहाँ पर आ जाएगा वाई वाई, और यहाँ पर जेड जेड। ठीक है, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर चलो मैं समझने के लिए हम लोग उसको सेम, बिकॉज यहाँ पे उतनी जगह नहीं है। तो इमेजिन करो कि मैंने ए डेटा इंसर्ट किया था, मैंने बी इंसर्ट किया था, सी डी ई एफ जी एच आई, आई नहीं यहाँ पर, क्या है वाई है ना यहाँ पर, तो चलो ठीक है आई ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर जे। ठीक है, so imagine your producer has already produced the 10 quantity of data a b c d e f g h I j। Okay, so your producer has already produced this data and it has already inserted the data into the buffer। Okay, that is the previous part। Okay, now your consumer is trying to consume the data, now your consumer will start consuming the data। Okay, so here is your consumer, consumer ये बैठा आपका डब्बे में। Okay, your consumer will first start with a 0। ठीक है, 0th इंडेक्स से जाके पहले वो क्या करेगा, कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा। now your consumer will start consuming the data। Okay, so here first let me make sure that what is the value of out here। हम लोगों ने सबसे पहले जो कंसिडरेशन किया था वो क्या था, वर इन इक्वल्स टू 0, जो कि हमको काम आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन को हम लोग ने 0 रखा था। ठीक है, इन को 0 रखा था, आउट को 0 रखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आउट 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउट का हम लोग यहाँ पर काम है, तो आउट हमारा 0 है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट,
कोई आप में से मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट, how many elements are already inserted in the buffer right now, how many elements are there in this? Okay, the total elements are 10 because your count says that okay, how many elements, number of items in the buffer. Okay, so number of items in the buffer is count. Okay, so for that we have count, that is total number of elements are 10, so 10 items aapke already. So we have got the value of 0, we have got the value of out and count, that is 0 and 10. So in the first iteration we'll start, so out is 0, count is 10. Okay, यहाँ से start करते हैं. Then we start with the condition while count is equal to 0. So what is the value of count? That is 10. So 10 is equal to 0. So 10 is equal to 0. This condition, is this condition true? This condition is false. Okay. If this condition false, then hello everyone, am I audible? I got disconnected from my mobile, so now I'm communicating with my laptop. Okay, so let me know that my voice is clear from laptop or not. Am I audible? अरे बताओ जल्दी. Yes, sir. Okay, thank you so much. Now I'm communicating with my laptop. Okay, so there may be some noise, so kindly consider. So we were कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर थे हम लोग. ठीक है, स्लाइड शो चल रहा था हमारा. ओके, सो स्क्रीन विजिबल है ना यहाँ पर? Yes. ओके ओके. So यहाँ पर थे हम लोग को, we are having the first iteration. In that first iteration, our the value of out was 0 and count was 10. Okay, so based on these two values, we have checked the condition, and the condition was not true. So we came out and we checked the next statement. We executed the next statement, that is next item C के अंदर डालना है. कौन सा item? That is buffer of out, because the consumer is going to remove the data. The consumer is going to consume the data. Okay, and which data it is going to consume, that is going to be stored in the next item C, as we have already discussed in the first slide of the implement, that is the consideration part. Okay, you can see next item C, this is the variable which stores the next data item to be removed by the consumer. Okay, कंज्यूमर को कौन सा डेटा आइटम अभी रिमूव करना है, दैट आइटम इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड द नेक्स्ट आइटम सी वेरिएबल. ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में वेरिएबल कंसीडर किए थे. ओके, सो कंडीशन चेक की हम लोगों ने. बफर ऑफ आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउट? दैट इज 0. तो बफर ऑफ 0 मींस व्हाट? इंडेक्स 0. इंडेक्स 0 मतलब कि कौन सा डेटा आइटम? ए. सो ए विल बी स्टोर्ड इनसाइड द stored inside the next item C. तो यहाँ पर आ गया आपका A. ओके, सो ये A को रिमूव करना है. your consumer is going to consume this data A right now. ओके, तो हो गया. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट, आउट इक्वल्स टू आउट प्लस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउट राइट नाउ? दैट इज 0. 0 प्लस 1 becomes 1. 1 mod 10. 1 mod 10. हाउ मच? बोलो जल्दी से. What will be the value of
out, what will be the value of out? अरे बोलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? 1. आप लोग एटलीस्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोग अगर नहीं बोल रहे हैं तो मैसेज करो 1। एक्चुअली मेरे मोबाइल से मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूँ ना, तो इसके लिए आप लोग के मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूँ, सॉरी। मैं ट्राई करता हूँ एक बार वापस से हुआ तो, एक सेकेंड। शायद हुआ है, कनेक्ट हुआ है, ट्राई करता हूँ मैं। चलो ठीक है, जब तक वो कनेक्ट हो तब तक हम लोग लिखेंगे। सो द वैल्यू ऑफ आउट विल बिकम 1। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउट की वैल्यू, आउट इक्वल्स टू 1 mod 1 mod 10 इक्वल्स टू 1। ओके, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट? काउंट की वैल्यू राइट नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज 10, सो 10 minus 1 बिकम 9। सो 10 minus 1 ये हो गया आपका 9, तो काउंट की वैल्यू हो गई हमारे पास में 9। ओके, so now at the end we have got the value of out and count, okay, that is 1 and 9. So I will write in the next iteration, I will write over here 1 and 9. Okay, so this is the second iteration. Now again I'm going to check with this condition, while condition count equals to 0, the count value is 9, 9 is equal to 0, 9 is equal to 0. Again this condition false and it will come out. We will check this condition, sorry, it will execute this statement. The buffer of out, the value of out is 1, so your buffer of 1 include the index 1 पे कौन सा आइटम है आपका? B. So your consumer is going to consume this item B right now. So B will be stored inside the next item C. So यहाँ पर आ जाएगा आपका B. तो ये हो गया टारगेट आपका नेक्स्ट डेटा आइटम जिसको हमको रिमूव करना है। ओके, आफ्टर दैट योर आउट वैल्यू विल बी अपडेटेड। आउट इक्वल्स टू आपका जो आउट वैल्यू है दैट इज राइट नाउ 1, सो 1 plus 1 becomes 2, so 2 mod 10, 2 mod 10 की वैल्यू है 10, so 2 mod 10 ये कितना हो जाएगा? अरे बोलो कितना हो जाएगा? वैल्यू विल बी 2। 2, वेरी गुड। कैसे अभी बोले? ऐसा बोलो आप लोग। So 2 mod 10 becomes value will be 2, okay, and the count equals to count minus 1, that is 9 minus 1, 10 becomes 8। ठीक है, तो आप लोग को समझ सकते हैं जैसे जैसे ये इटरेशन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर आपके आउट की वैल्यू बढ़ती जाएंगी और काउंट की वैल्यू कम होती जाएंगी। ठीक है, सो आगे आगे के इटरेशन के अंदर आप लोग खुद समझ सकते हैं, आगे के इटरेशन हम लोग ऐसे लेके जाते हैं 9 तक लेके जाते हैं पहले। ठीक है, तो चलो यहाँ पर 1 2 3 होते 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 हम पहुंच गए 9 पर। ठीक है, तो ये पहुंच गए 9 पर, यहाँ पे जगह कम है इसके लिए 9 और 10 ये दो इटरेशन में लास्ट के दो इटरेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो इन द सेम वे योर कंज्यूमर हैज कंज्यूम द आइटम सी, योर कंज्यूमर हैज कंज्यूम द आइटम डी, योर कंज्यूमर हैज कंज्यूम द आइटम ई, देन एफ, देन जी, देन एच, एन आई और जे। ठीक है, सो नाइन्थ वाले आउट पे आपका नाइन्थ वाला आ गया है। सो द काउंट वैल्यू क्या रहेंगे उस टाइम पे, बोलो मुझे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट? What will be the value of count? That will be 1। ठीक है, बिकॉज दोनों का रिवर्स हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे काउंट की वैल्यू अगर आपको चेक करना है तो एक एक करके एक एक इटरेशन करके आप लोग चेक कर सकते हैं इसको बाद में, बट राइट नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट बिकम, बिकॉज आपको मैंने बताया यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर ये 1 था, ये 9, ये 2 8, ये 3, ये 7, 4 6 5 5, ओके, और 4 यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे 6, वहाँ पे 4, फिर बाद में 7, यहाँ पे 3, ऐसे बढ़ते 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 जब यहाँ पे 9 आएगा तो वहाँ पे आपकी काउंट की वैल्यू हो जाएंगी 1। ओके, सो दिस वैल्यू बिकम 1। आफ्टर दैट अगेन कंडीशन चेक, काउंट की वैल्यू है 1, 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0, अगेन कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स है, बाहर आया। नेक्स्ट आइटम सी कौन सा है भाई? जे है, जे वाले आइटम को क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद में आउट की वैल्यू अपडेट करना है, आउट की वैल्यू अपडेट करेंगे। सो आउट की वैल्यू राइट नाउ द आउट की वैल्यू इज 9, 9 plus 1 becomes 10, and 10 mod 10 becomes what? 0. 0, very good, so it becomes 0, the value of out becomes 0, and the value of count will become what? 1 minus 1, what becomes 0। okay, so value 0 हो गई, यहाँ पर भी 0 हो गई। okay, अब आगे आप चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर,
तो अब आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी 0 है और ये भी 0 है। सी, अब यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली चेक करो आगे का इटरेशन कैसे होने वाला है, ठीक है। कंडीशन चेक, काउंट की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। अब कंडीशन जब ट्रू हुई तो ये आपका अंदर जाएगा, बिकॉज कंडीशन ट्रू इसका मतलब ये कि वी हैव नथिंग टू कंज्यूम राइट नाउ इन द बफर, ऑल द आइटम व्हिच वर जनरेटेड बाय द प्रोड्यूसर हैज बीन कंज्यूम्ड, हैज बीन रिमूव्ड बाय द कंज्यूमर, ओके। कंज्यूमर ने उन सारे डेटा आइटम्स को रिमूव सक्सेसफुली कर दिया है, ओके। अब यहाँ पर कुछ डेटा बचा नहीं, तो जब कुछ नहीं डेटा बचा तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इट शुड इन्फॉर्म एंड इट शुड मेक श्योर दैट if the buffer is empty then it should not consume any data item from the buffer, ठीक है। तो हमारा सिस्टम ऐसा ही है, जहां पर हमारा पूरा डेटा कंज्यूम हुआ, देखो यहाँ पर हमारा ये इटरेशन के अंदर, in this particular iteration all the data which were there in the buffer were consumed successfully। so अब यहाँ पर कुछ और है नहीं, जब और कुछ है नहीं तो फिर यहाँ पर हमारा सिस्टम ने ऑटोमेटिक चेक किया और हमको यहाँ पर while कंडीशन के थ्रू डू नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेके आ सकते हैं डू नथिंग। तो जब ये दोनों, जब ये आपका काउंट की वैल्यू 0 है, so your 0 is equal to 0 becomes true and you have to do nothing, मतलब कंज्यूमर को क्या करना है अभी, it has to do nothing, अभी कुछ नहीं करना है, because there is nothing in the buffer to consume, there is nothing in the buffer to consume। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। so in this way where your consumer can be implemented, in this way your consumer part can be implemented, and we will make sure that your consumer won't try to consume any data item from the buffer if the buffer is empty, your consumer won't try to consume the data item if the buffer is empty, okay। so this is the, I think the code is very very simple। if you see the code of producer and consumer, दोनों कोड को अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके। काउंट इक्वल्स टू n, यहाँ पर हम लोगों ने कंपैरिजन, जो फर्स्ट कंपैरिजन किया वो n के साथ में कंपैरिजन किया है। व्हेन द काउंट बिकम्स, व्हेन जितने जो नंबर ऑफ आइटम्स इन द बफर है, अगर वो नंबर वो n के साथ में अगर मैच कर जाते हैं, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप कर देगा कि भाई अब जगह खाली नहीं है, इसके लिए we have to stop inserting the data in the buffer in the producer part। in the consumer part we have compared the value of count with the 0, okay। जहां पर वो 0 हो गया मतलब के खत्म हो गया और अंदर कुछ है नहीं बचा हुआ, तो और इसके बाद में उसको do nothing, it has to do nothing, okay। और उसी तरीके से जो नेक्स्ट जो 3 लाइन है यहाँ पर बफर ऑफ इन के अंदर, यहाँ पर उसका रिवर्स किया हम लोगों ने। नेक्स्ट आइटम जो हमको प्रोड्यूस करना है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बफर में डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बफर में जो ऑलरेडी डेटा आइटम है उसको हम लोग निकाल के नेक्स्ट आइटम सी नाम के वेरिएबल में डाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर निकालने वाला काम है और यहाँ पर डेटा इंसर्शन का काम है, यहाँ पर डेटा रिमूवल का काम है, यहाँ पर डेटा इंसर्शन का काम है। और यहाँ पर आपको आउट इक्वल्स टू आउट प्लस 1 करना पड़ा, यहाँ पर हम लोग ने इन इक्वल्स टू इन प्लस 1 मॉड एन किया, तो ये ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 है, यहाँ पर काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1 है, तो दैट इज डैम सिंपल, आई डोंट थिंक इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है। सो ये प्रोड्यूसर पार्ट है आपका, ये कंज्यूमर पार्ट है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम का, तो उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। सो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं सेव करता हूँ, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम को। तो मेरे पास में अगर पेपर है तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली पेपर में से बताता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर क्लियरली। लेट मी सी वेयर आर द पेपर। चलो एक बार चेक कर लेते हैं पेपर में से कुछ है क्या। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम, देखो है क्या ज़रा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। डाइनिंग फिलोसफर है, बैंकर्स एल्गोरिथम है, कमाल है भाई।
और चेक कर लेते हैं कहीं पर है क्या। हमारे पास में सारे पेपर्स नहीं है एक्चुअली, तो इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। मेरा एक दो पेपर में तो मैंने देखा था क्वेश्चन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम का, और इसमें हम नहीं दिखा रहे हैं। उसके अंदर भी नहीं है, पता नहीं आगे भी होगा कहीं। तो और ओल्ड पेपर्स हैं। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है, चलो इसके अंदर नहीं है पेपर। अपडेटेड पेपर में शायद हो पेपर, और अगर उसमें भी अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट कम से कम आपको ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आएगा, बिकॉज देयर इज वन सेपरेट एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन दिस वन। अब एक्चुअली लास्ट वीक हम लोग का एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ है, लेट मी शो यू दैट आल्सो। हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहता है वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ है। कहाँ पर है? हाँ, एक सेकेंड ना। OS लैब एक्सपेरिमेंट्स लास्ट वीक के अंदर हम लोग का प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि आप लोग का ये प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम जब कंप्लीट होगा तो एट दैट टाइम वी कैन हैव दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब आपको मैं यहीं पर टास्क दे देता हूँ। तो ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6। राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सोल्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम थ्रू सेमाफोर। तो थ्रू सेमाफोर के हम लोग यहाँ पर उसको बेसिकली उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सेमाफोर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर हमारा, बिकॉज हम लोग जब अगर कभी वहाँ पर हमारा इंसर्ट नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते तो हम लोग उसको डू नथिंग सेक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट वी आर इम्प्लीमेंटिंग। तो यहाँ पर हम लोग को जो करना है वो बेसिकली जो हम लोगों ने अभी किए हैं, ठीक है, थियरी में की उसी चीज़ को आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को बस के अंदर करना ये होगा आप लोग को किस तरीके से मैनेज करना है उसको, और उसको अलग अलग करना है कि साथ में रखना है, दैट इज योर चॉइस। ओके, तो आप प्रोड्यूसर का अलग सोल्यूशन लाएंगे, आप कंज्यूमर का अलग सोल्यूशन लाएंगे, सो दैट इज अप टू यू। ओके, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज एक्सपेरिमेंट, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। इसको मैं इसका असाइनमेंट भी आप लोग को डाल दूंगा। सो अगेन एक हफ्ते का आप लोग को टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। सो ये हमारा बेस्ड है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बेस पर, मतलब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बेस पर है। ठीक है, सो इसको प्रैक्टिकल भी समझ के लो। ठीक है, इसको आप लोग इम्प्लीमेंट भी करना है। और आई थिंक कि इसमें से ऑलमोस्ट ये जो कोड है ये कोड आपका यूज होने वाला है, ये आपका प्रोड्यूसर के लिए, ये कंज्यूमर के लिए। बस आपको थोड़ा सा हेडर फुटर और थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, some initialization, some consideration whatever we have made earlier. So you have to implement all these things in your code, okay, and you have to complete it. Okay, so is this thing clear? सबको क्लियर है ये चीज क्या करना है? अरे बोलो क्लियर है या नहीं? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, मैसेज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग का जल्दी हो गया, वी कैन नॉट स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आई थिंक सो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। लेट मी सी द सिलेबस फर्स्ट अगेन। सी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द last part of this particular chapter, that is principles of deadlock, conditions and resource। ये भी important है। यहाँ पर हमारे पास में एक algorithm है, that is Banker's algorithm। okay, Banker's algorithm, और लास्ट में एक है dining philosopher problem। ठीक है, so ये चीज़ भी आप लोग को बताना है, और Banker's algorithm भी important है। बाकी सब तो क्वेश्चन एग्जाम में एक दो कभी कभार पूछता है। ठीक है,
तो ये हम लोग को इम्पोर्टेंट रख के करना है कंप्लीट उसको, और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा भगाएंगे, ठीक है। विल स्टार्ट द मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर इसमें एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। फाइल मैनेजमेंट तो बहुत ही शॉर्ट है, ओके। और लास्ट में फिर आईओ मैनेजमेंट है। आईओ मैनेजमेंट में भी ये जो आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, आपके डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक, अब कल तो लेक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन मंडे को और ट्यूसडे को, ठीक है, इन दिस 2 days वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ डेडलॉक कंडीशन रिसोर्स, देन व्हाट इज एलोकेशन ग्राफ, व्हाट इज डेडलॉक प्रिवेंशन, व्हाट इज डेडलॉक अवॉइडेंस, ये पूरा हम लोग ट्राई करेंगे एक लेक्चर में या 1.5 लेक्चर में कंप्लीट करने को। देन विल स्टार्ट विद द बैंकर्स एल्गोरिथम, जो कि डेडलॉक अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर, मतलब अगले हफ्ते में इसको हम लोग को वाइंड अप करना है, उसके बाद में ये चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको मैं सेव रखता हूँ, ये शीट आप लोग को दे दूंगा मैं। लेट मी गिव द अटेंडेंस शीट फर्स्ट। Attendance link I have given. Please mark your attendance. Let me stop the recording.